तू चलता चल तू चलता चल तू चलता चल. So we'll go ahead with Barun's psychology responses, and I'll keep giving my comments for the benefit of Barun and also all of you others. Saksham is a working professional in a MNC in Noida and is the sole earner in his family. 1 month during his regular quarterly checkups, he got to know that his heart artery is severely blocked होना चाहिए जैसे block लिखा है and needs to be surgically cleared through angioplasty. So he got leave from his job. He discussed this with his partner who got worried and tense listening to surgery. So he got bubbly, told her not to get tense as it is not that big of a surgery and gave all instructions to follow while his bedridden like fill up the insurance papers, coordinated with the doctor, etc. He gave her moral support, and after following the instructions given by doctor, he was fit and fine and joined his job after the leave was over. There is nothing very wrong with this story. It is okay. There are few issues when you have such pictures in which you are shown one person is apparently not capable of doing much, like in this case, this person is lying down on bed. So it would be appropriate to make this lady as the main character. And how this lady helped this gentleman, resolve the issue, whatever the issue was. Now, in this case, probably Barun is having a mindset that since he is a male, so the protagonist has to be a male. Now, this is a very stupid mindset, but I mean, so much of junk is full of such stuff, websites, coaching academies, and all that. So, probably that is something he had in his mind. Overall, nothing very wrong with this story. It's an acceptable story. Yeah, Varun, did you have this kind of mindset कि male को ही main character बनाना है? Yes, sir. हाँ. Now you realize it doesn't seem very sensible. Yes, sir. Okay, fine. So we will move to the next story unless anyone has got any questions on this one. Okay, we will move on. और ये चीजें लिखना ठीक नहीं. He got bubbly and all that. I mean, these are and angioplasty is not a light stuff. Okay, चलिए आगे. Oh, हाँ, okay, fine. The picture you have all seen. So let us see this story. Rohan and his friends are college students studying in Delhi University. They all discussed and decided to go to Manali during the long weekend, which was approaching. Rohan took up the task to come up with different activities they could perform during the trip. Full stop होना चाहिए था, नहीं लगाया है. The main was hiking to a hilltop, which could be done by beginner without any assistance. Everyone agreed. फिर भी full stop होना था. Everyone agreed and went for the hike. During the hike, they would rest and walk at equal intervals so that no one would feel tired. Rohan suggested that one would take chances to look after the belongings while others are asleep. They enjoyed all the activities planned. They also explored cafes, eventually went back to college after completing the trip. Now, this story is not okay. Because if you observe this picture, they are 4 persons shown wearing uniform. So this is an organized group. They are not students. And students of DU, when they go on leave, they don't wear uniforms, which are, I mean, they don't wear uniforms as simple as that. Now, also, another thing to note here is that the persons are huddled close together, which is something not normal. They are lying so close to each other. That means they are in some place where there is some kind of threat. Other thing is that they are resting is means apparently they are tired, and also it is shown that one person is
keeping an informal kind of watch. He's not like what we have sentry duty, is awake and standing up and all. He's lying down, but just keeping an eye. So this could be, in uniform, in NCC, Scouts, Guide, Forest Rangers, soldiers, all these kinds of groups are okay. And they are somewhere, if they are soldiers, they are somewhere in proximity of enemy where threat is imminent. That's why they're lying so close together. If they are forest rangers, there is threat of animals. And for that, one person is keeping an eye. So also, if you observe the picture more minutely, then they don't look like Indians. This probably, so names of foreigners would be more appropriate. So an appropriate story would be about such a group and the things which I told you around that. If a story was made, then it would be okay. Have you got the idea, Varun? Yes, sir. समझ में आ रही है? स्टूडेंट्स नहीं ऐसे यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं. So, मेरे को लगा कि थोड़ा ट्रैक सूट, वो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, जो कार्गोज पहन रखी है उन्होंने, नॉर्मली जो होता है ट्रैक के लिए पहनते हैं. भाई साहब बिल्कुल एक से हैं, एक से ही हैट हैं. यस सर. कार्गो शार्गो नहीं है. तो यूनिफॉर्म, ठीक है ना? यस सर. Getting the point? यस सर. Anyone, any questions on the story or the comments that I have made? Okay, fine, we'll move on. Dr. Rohit Sinha is a well-known surgeon in Delhi and is well established in the society and the healthcare industry. During one of his talks in schools and colleges seminars, one aspirant who is in 10th class asked how one can become like him and what should he do to achieve what he has now. So he gave all the points he followed during his teenage, like being focused and plan your every move, etc. After seeing the kid's interest in him, he talked to him after the seminar, directed him and motivated him to pursue medical, and बीच में कुछ छूट गया है, and gave him his contact of his assistant. Eventually, following his ideology and direction, scored good in his school and cleared the medical entrance examination. Passable story, not bad, but not very good also. Let me give you the comments. First is that the main character should be the one shown in the foreground. So this schoolboy should be made the main character, and around him the story should be made, and not around the person who is shown in background. Okay, this is one thing. Now, if you observe the picture, there is a prominent gun shown. Now, this gun is not figuring in your story. Nothing very seriously wrong. I mean, you can ignore certain aspects. Also, the other thing is that the the scene does not look like that of a hospital, because in hospital you see the kind of dresses, gloves, and all that. The environment is there. That is not there. So it looks something like a clandestine activity going on. I mean, not in a very formal environment. This sort of surgery which is going on. So these inputs are not relating very well with the story that has been written by Baruch. Fine. So if you go to our book and you read the story which has been written around on this picture, it would make more sense. Have you read it, Barun? No, sir. I'm in progress, sir. I'm just reading from the start. चलो, कोई Yes, sir. बात नहीं. मैं बोलता हूँ सबको कि आप डिस्कशन से पहले पढ़ लीजिए तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी. Anyway, doesn't matter. Read it now and understand it. Fine. तो जो आप ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपने स्टोरी लिखा, समझ में आई बात? Yes, sir. Okay.
Anyone, any questions? Yes, sir, I have a question. Go ahead. Sir, if we miss some of the aspects in these pictures, like this gun was shown in this picture, if we had missed that aspect, in the previous picture as well, like there was one person keeping an eye. So, sir, if we leave these aspects in some pictures and constantly we are doing so, so sir, does it create a negative impact on the psychologist? अच्छा, देखो जो भी ये कौन पूछ रहा सवाल? Sir, I'm Neeraj. तुम्हें कष्ट रहेगा जिंदगी में जो भी इन चक्रों में पड़ा हुआ है ना कि साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा, वो तो रिजेक्ट होने वाला बंदा है। आपकी बात समझ में आ रही है? आप असेसर का बाप बनने की कोशिश मत करो। आप ये देखो कि क्या कुछ आप कर सकते हो। अब मान लीजिए इसी पिक्चर में एक फुटबॉल भी रखी हो सकती थी। Yes, sir. अब उस फुटबॉल को आप ला सकते थे कि शायद फुटबॉल में इंजरी हो गई, पॉसिबिलिटी, बट Yes, sir. देयर कुड बी समथिंग विच इज टोटली अनकनेक्टेड। या मान लीजिए इसमें एक पिंजरे में तोता टंगा होता, हो सकता था। Yes, sir. अब कितनी चीजों को आप स्टोरी लाइन में फिट कर सकते हो। कुछ चीजें हो जाती हैं फिट इन, कुछ नहीं हो पाती हैं। इट इज definitely I would say that a person who is able to fit in most points which are shown, it's like picture is like a jigsaw puzzle. Who can make sense out of that jigsaw puzzle? His practical thinking is of a higher level. There's no doubt about that. But you're trying to get involved in इस साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा और ऑल दैट, ये करने के चक्कर में आप लोग पड़ गए ना भाई, फिर आप रिजेक्ट होके ही आओगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. आपने हमारी स्टोरी पढ़ी है बुक की जो इसके ऊपर लिखी है? No, sir, I have not read it yet. ये बहुत अच्छा काम करते हो, पढ़ते नहीं हो आपको, दैट्स अ गुड थिंग यू पीपल डू। तो एनीथिंग एल्स? No, sir. Okay, let us move ahead. Yeah. Raghu lives in a nuclear family in a village near Agra with his mother and sister. His father works in the city in mill to support the family. At home, Raghu takes care of his family. He is a 12th standard ka hai, does odd jobs and takes maths tuitions for kids in the evening to add up to the income of the family. One evening, he got to know that his sister has been bunking the classes and staying at home for the past 2 days because she was not feeling the need to study. He was upset by her actions and confronted her. He told her the consequences of being not educated and convinced her through his mature and practical ideas. Also told her mom नहीं होगा, his mom होगा, अंग्रेजी आपकी कमजोर है, not to be so lenient with her. After that, her sister was regular to school and did well in her studies. Okay. Nothing very seriously wrong with the story. It's an okay story. There are few issues. Like, if you see the appearance, does this boy look like a 12th class wala hai? हाँ जी भानु, कितना बड़ा लगता है ये? सर लग रहा है हैं? सर, लग रहा है सर 18 to 19 20 है सर। अच्छा, इतना ही लग रहा है? हाँ सर। ओके, ओके, लेडी बड़ी लग रही है। और जो पीछे बैकग्राउंड में लड़की दिखाई है वो कौन, कितनी बड़ी लग रही है? वो तो उसकी बीवी लग रही है सर। हाँ जी, वो बहुत बड़ी लग रही है सर, लाइक उससे भी बड़ी। पीछे वाली बैकग्राउंड।
मतलब सर वो स्कूल जाती हुई लड़की तो बिल्कुल नहीं लगती, उसके अलावा कुछ भी और हो सकती है। सर थोड़ी नहीं, सिमिलर एज है दोनों की। विपिन आप रहने दो, कोई और बताओ। सर वो बैकग्राउंड में जो लड़की है वो छोटी एज की लग रही है और ये लड़का 25-26 साल का लग रहा है, और ये तो मतलब इसकी जो मदर की एज की बैकग्राउंड लग वाली है, she can be passed off as a school or college girl. In my view, this person who's standing, he definitely doesn't look like a 12th class boy. He looks elder than that. That is my perception. What are your views, others? यस सर, Other than Vipin and Barun. 25 to Sir, 30 I would say. Okay. So, I think it would be commonly understood that he looks elder than the 12th class boy, है ना? तो स्टोरी में कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, उसे फिर वर्किंग प्रोफेशनल डाल सकते थे। तो बाकी स्टोरी ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद द स्टोरी, इट्स एन ओके स्टोरी, फाइन। These were the few things. Any points, any clarification, Barun? No, sir, all clear, sir. Okay, let us move to the next one. हाँ, चलिए और ऊपर ले आओ, और ऊपर, हाँ। Sham just got a promotion from an assistant station master to a station master and was posted to a local railway station. When he reached the station, first thing noticed was that it was very unhygienic. Not a single seating place was in proper shape. When he saw the whole station, the basic services the vendors gave according to license. So first thing he did was schedule a meeting with the assistants and the working force of the station, gave them instructions to clear ये हो गया, ठीक 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 ठीक, तो उसने फिर ठीक ठाक करा दिया और ठीक ठाक काम करा दिया स्टेशन। Okay. Now, thing is that nothing very seriously wrong with this story. पर कुछ ऐसा लग भी रहा है कि गड़बड़ है, चलो बट विजुलाइज किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये चश्मे वाला आदमी जो लेफ्ट कॉर्नर में हो सकता है ये पोस्ट हुआ हो एज द स्टेशन मास्टर। तो ओके, व्हाट माय टेक ऑन दिस पिक्चर्स ऑफ लाइक रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, बस स्टैंड है। So these are just modes of transportation. So nothing much major is going to occur there. तो कोचिंग एकेडमी टाइप स्टोरीज ऐसी होती हैं कि किसी की ट्रेन छूट गई थी, किसी का सामान छूट गया था, कुछ बम फट गया था, कोई बच्चा खो गया था, such kind of stories people write. They are not very appropriate. Or people write stories like the one which Barut has written. ठीक है, acceptable है, but it may be more appropriate on such scenes that if you can write story like कि ये ट्रांसपोर्ट मूवमेंट ही होना है इसमें। जैसे मान लीजिए आप जो अब वो आगे खड़ा है जो या इस पे बैठा हुआ है सूटकेस के ऊपर हैट लगा के बंदा, कि इसने जो है जाना है अपनी ट्रेन पकड़ के, तो इसने कुछ अच्छा काम किया है, नाउ ही विल बी कैचिंग द ट्रेन एंड गोइंग। तो like he has qualified IMA and he'll be going to join the training. So such kind of stories can be made. Or if you see in this picture, I find that the most prominent person shown is this coolie who's got a hold all on his head. तो अगर इसकी स्टोरी बना दो कि कैसे इसने सिंसियरली काम वाम किया और अपनी फैमिली को अपलिफ्ट किया, that could also be an okay story. So the story which Barut has written is also acceptable, nothing wrong with it. I mean, ठीक ठाक है story, fine. No serious observations. Any questions, Barun? Anyone else? Any other points? Sir, I have one question. Go ahead. Sir, here are many characters in this picture, but if there are some like 3 to 4 characters in the picture,
Then is हाँ, it अगर और necessary भी हो to जाते include? 5-6, Is it necessary to include all of them in story? आप मुझे बताओ, इसमें अगर जो है एक किनारे में एक आदमी क्रिकेट का बैट टांग के जा रहा होता और दूसरे किनारे में 3 बंदे हॉकी स्टिक लेके चल रहे होते, सबको डाल देते कहानी में? No, sir. भाई रेलवे स्टेशन में क्रिकेट खेलने वाला भी जा सकता है, हॉकी खेलने वाला भी जा सकता है, पॉसिबल है ना? Yes, sir. डाल सकते हो सबको क्या? नहीं sir. अब इसमें एक आदमी दिखा होता है टैप रिपेयर कर रहा है, हो सकता था ना? Yes, sir. तो उसको भी डाल देते, नहीं sir. क्या सर डाल मेरा सकते हो? मतलब पिछले स्टोरी में कैसे 3 थे, हाँ जी, पिछले स्टोरी में 3 कैरेक्टर्स थे, तो इसलिए तीनों को डालना नेसेसरी था देखो ना। आप देखो, नहीं खिचड़ी मत बनाओ, टेम्पलेट्स में मत चलो, मुझे अब इसकी बात करो, आप पिछले की नहीं, ये व्हाट नहीं सर, अबाउट इसमें नहीं पॉसिबल है सर. 70 साल से ये हुआ था नॉल दैट, अभी बताओ इस पिक्चर में बताओ। नो सर, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल. ये लॉजिकल खुद ही आपको जवाब मिल रहा है ना, यस सर. नहीं डाल सकते। अब देखो, ये जो है जो स्टेशन पे दिख रहे हैं और एक आदमी जो ट्रेन के अंदर से देख रहा है बाहर, भी कुछ हाथ हिला रहा है, उसकी और इनकी स्टोरी कनेक्ट हो सकती है? अलग है ना चीजें। अब चश्मे वाला आदमी घूम रहा है, वो अलग है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर, Yes, sir. गेटिंग. तो यू कैन नॉट कनेक्ट ऑल पीपल। अब तुम्हें मॉल का अगर सीन दिखा दिया, मॉल में लोग अलग अलग खरीदारी करने आ रहे हैं, तो कैसे कनेक्ट करो? प्रोमिनेंट की बना सकते हो ना स्टोरी। अब मेरे को सबसे प्रोमिनेंट आदमी कूली दिख रहा है, उसकी बना सकते हो, उसकी बना दो आप स्टोरी। बाकी तो इनमें से पैसेंजर की लेके जो मैंने बताया वैसे ही बना सकते सर हो। फाइन। सर हाँ जी। sir, Adarsh Kumar has a question. He has posted it in chat. He says he's in office. तो पूछ लो आप सवाल, उसका अगर पढ़ लिया। Sir is asking that is it good to use adjectives to highlight the efficiency of the hero instead of using the actions in the story to achieve the same motive? पहले आदर्श भाई साहब से पूछिए कि क्या इन्होंने मेरी किताब पढ़ी है। इन्होंने मेरी किताब नहीं पढ़ी होगी, ये मुझे मालूम है, ठीक। Yes. And the thing is that has anyone read out of you who are present here? Yes, sir, I have. Yes, sir. मैंने Yes, क्लियर sir. दिया है कि एडजेक्टिव वगैरह नहीं डालना है बिल्कुल। Yes, sir. नहीं जी डालना। ये सर. बेवकूफियां हैं जो कोचिंग वाले करवाते हैं कि OLQ डालो, पहले OLQ डालने शुरू करे हो, जब 15 पूरे हो जाए तो फिर से शुरू कर दो। दिस इज ऑल बकवास ऑफ कोचिंग एकेडमी, डोंट डू इट। Sanjeev is a working professional in a manufacturing company which develops, होना चाहिए था, parts of cars to its clients according to the requirements. Sanjeev is the general manager responsible for the order to complete on time on the job floor. अच्छा, ये जो है ना, एक मैं बताता हूँ आपको, ये जो काम कर रहा है ना, उसकी इतनी लंबी कहानी देने की जरूरत नहीं है कि क्लाइंट का ये करता था, उसका वो करता था। अगर आप ये लिख देते कि इन Sanjeev works in an automobile manufacturing company, that's it. वो MNC थी, लोकल थी, इधर की थी, उधर की थी, MSME थी कि बड़ी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई बात समझ में वरुण? Yes, sir, समझ गया. अच्छा चलो, अच्छा। He got a consignment of 2500 parts which were to be delivered होना चाहिए था। आपकी अंग्रेजी कंसिस्टेंटली पुअर है भाई साहब, अंग्रेजी डुबा देगी आपको। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो आप सब लोग जो सुन रहे हो, if you get a psychologist who has views similar to mine, then there is a need to check the psychology part of only 15% of the candidates. 85% can be very safely rejected for poor expression. Fine. And Barun meets that criteria. He comes in the criteria of 85%, can be safely rejected for poor English. Okay. अच्छा, तो फिर 2500 पार्ट की आ गई। So to complete the manufacturing, the machines and the operator had to work overtime.
During the night shift of the operators, he got a call that one machine line was down due to some technical error, and the technician which was briefed, which नहीं होना चाहिए, technician आदमी है, who होना चाहिए उसके लिए, briefed by Sanjeev, were not able to solve. He on the phone explained the technician coordinated and solved the error. Therefore, the downtime was reduced. The client got the parts on time. Sanjeev gave them some incentive to motivate them for further work. अब क्या है इस पिक्चर में, the person who is standing prominently is a lady. It is not a man. तो आपका जेंडर आइडेंटिफिकेशन ही गलत है। और फिर आप एक माइंडसेट भी लेके चले हुए हो कि क्योंकि आप मेल हो तो सारे ही मेन कैरेक्टर्स मेल होने चाहिए थी, ये भी एक प्रॉब्लम आपकी डिफॉल्ट सेटिंग हुई है मेंटल। तो लेडी के बारे में स्टोरी लिखी थी। नाउ in this story, this person who is lying down with back towards us, he has not figured at all. Now, it was very easy to bring him in the story. Like it could be, now we cannot interpret clearly as to what this lady is holding in her hand, and she is observing it carefully. Now, this is definitely not a phone. अगर फोन होता तो कान से लगा के बात करते, ऐसा सामने नहीं देखते उसमें। तो अब ये हो सकता है, कुड बी अ थर्मामीटर, इट कुड बी अ वॉच, इट कुड बी अ बैंगल। अब अगर ये लेडी इन चीजों को उठाकर देख रही है, अगर थर्मामीटर है तो वो बंदे का हस्बैंड है, उसकी तबीयत खराब हो गई और व्हाटएवर रीजंस, एंड दिस लेडी हेल्प्स हिम रिकवर। और ये घड़ी अगर है तो वो उठ नहीं पाया किसी वजह से, अलार्म शलार्म बज गया एंड ऑल दैट, जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, वंस अगेन द लेडी कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम। अगर बैंगल है तो ये हो सकता है कि भाई गरीबी आ गई है, आजकल देश में गरीबी आई रखी है पूरी, तो कहती है कि भाई बिजनेस चलाने के लिए और डेट वेट क्लियर करने के लिए बैंगल ही बेच देते हैं, बाद में खरीद खराद लेंगे, तो वो डिसीजन ले लेती है ये लेडी। तो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज would be quite appropriate for this picture. The story which Barun has written, as such, the story is okay, but it is not relating well to the picture, and to that extent, I would say it is an unacceptable story. आई बात समझ में वरुण? यस सर। बाकी लोगों के भी आई समझ में? यस सर। हाँ, anyone, any questions? Sir, I perceived it as a like वो बीमार है और उसकी पत्नी उसकी केयर कर रही है, like taking care of him. तो ये भी तो ठीक ही था। तो मैंने बोला ना कि थर्मामीटर हो सकता है, घड़ी हो सकती है हाथ में, बोला तो that would be an okay story. Raghav is a last year B.Tech student in mechanical engineering stream in Delhi. He had designed an attachment for the tractor which can be used to remove stubble efficiently at low cost as his major project. He fabricated his patented design after some getting investment from private company. अच्छा, वरुण का कॉमा फुल स्टॉप का तो कॉन्सेप्ट है ही कुछ नहीं, का मतलब लिखे जाओ। ओके, फिर फोर्ड हॉलैंड नाम है, कैपिटल कोई मतलब नहीं, कनेक्शन है ना। तो भाई साहब आप तो 85% में आ रहे हो आराम से ना, बिल्कुल समझ में आ रही है ना वरुण? यस सर। हाँ, आराम से 85% इजीली यू आर फिटिंग इन। ओके, मतलब आपको पता होगा ना कि अगर नाम कोई होता है प्रॉपर नाउन तो उसे कैपिटल से लिखते हैं। हाँ सर। है ना, पर आपने लिखा नहीं, आपने कहा चलो चलने देते हैं, तो साइकोलॉजी भी कहेगा चलो रिजेक्ट कर देते हैं, अगली बार फिर आ जाएगा। अच्छा, then for testing he pursued some farmers in the nearby villages in Haryana to test his product. First they were reluctant to use it, but were convinced by Raghav after he told them the pros and cons of the product. Pros कौन से नहीं बताते, pros ही बताते हैं ऐसे में। अच्छा, after being tested his attachment was very much efficient and useful for the farmers. ये हो गई, इसने करा दिया। तो ये कहानी इसकी डिग्री और ये
तो काम अब इसका ठीक ठाक। अब देखो क्या है, इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक आदमी जो दीवार के साथ टेक लगाए हुए वो एक ग्रोन अप एडल्ट है, और बाकी ये 3 बच्चे हैं, इनका साइज ही छोटा है उससे। दिख रहा है साइज छोटा? दिख रहा है ना सबको? यस यस सर। सर। तो Yes, sir. ये जो है ज्यादा से ज्यादा 6ठी 7वीं क्लास के हो सकते हैं, उससे बड़े नहीं है ना। Yes, पर यस सर। नाइन Yes, sir. 9 10 तक आते आते तो साइज बराबर सही हो जाता है एडल्ट के। तो पिक्चर का इंटरप्रिटेशन गलत। अब जो है, अब ये बच्चे जो हैं, अब इनमें मान लो, अब इनमें जो है ये 3 पगड़ी वाले हैं, जो एडल्ट भी है और 2 बच्चे और एक बिना पगड़ी वाला है। तो वो ये 2 है, 3 एक फैमिली के हो सकते हैं, तीसरा बाहर वाला हो सकता है। अब बच्चों से बातचीत किन चीजों की हो सकती है? पढ़ाई लिखाई के बारे में बातचीत हो सकती है, और गांव वाले लग रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खेल कूद के बारे में बात हो सकती है। अगर एक ही फैमिली वाले वो 3 जने हैं, वो बात कर रखे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन की बातचीत की जा सकती है। केटल मैनेज आजकल चला पड़ा है गांव में, उनकी बात हो सकती है। दूध वूध के बारे में बात हो सकती है। पॉवर्टी के ऊपर बातचीत हो सकती है, कैसे दूर किए जाएंगे। तो ये जो है रूरल में इश्यूज हैं। अब इस पिक्चर में देखिए, इनकी अपीयरेंस से कोई आदमी जो है ये दिल्ली का मैकेनिकल इंजीनियर नहीं लग रहा। लग रहा है कोई इनमें से मैकेनिकल इंजीनियर दिल्ली वाला? नो सर। तो सर नहीं लग रहा। हाँ, देखो जो ऑब्जर्वर्स है ना, वो कितने प्रोमिनेंट बात करते हैं, जो लिखता है बेचारा वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता है। पर देख वरुण, बात लग रहा है इंजीनियर इनमें से कोई? नहीं लग रहा सर। नहीं लग रहा ना। हाँ, लेट्स नहीं बी लग रहा। हाँ, लेट्स बी। मजबूर लग रहे हैं। तो अब ये देखो, इस तरह के इश्यूज की अगर आप लिखते हैं स्टोरी जो मैं बता रहा हूं, तो देन इट वुड हैव बीन ओके। ये स्टोरी जो है इस पे बैठ नहीं रही। आई बात समझ में? यस सर। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट एन बुक। समझ गए? हाँ जी सर। एनीवन, एनी क्वेश्चंस? यस सर। हाँ जी। सर ये जो आपने अभी कमेंट की कि ये इंजीनियर नहीं है, मे बी ऐसा हो सकता है कि वो हॉलीडेज में घर आया हो, लाइक समर घर आके ब्रेक। वो धोती और ऐसे नंगे पैर घूमने लगता हो। तुम मुझे बस सर, बताओ, तुम पैंट कमीज वाले हो रूटीन लाइफ में, कि धोती बांधने वाले हो? पैंट कमीज वाले हैं सर। अब तू बता, तेरे पास धोतियां भी रखी हैं तूने, कि जब तू गाँव जाए तो धोती पहन लिया करे? वो सर सलवार सा लग रहा नहीं था नहीं नहीं, मुझसे इफ बट वाली ना कहानी, कि 70 साल में ये हुआ था। मोदी से पूछना अब क्या किया तूने, तू बता। अब तू रखता है अपने साथ धोती? नहीं सर। तो ये क्या कॉमन सेंस की बात नहीं है? अच्छा तू अब रुक जा, कोई बता, योगिता आप बताओ। चलो जी, योगिता तो लड़की है, योगिता को छोड़ देते हैं। तुम मुझे बताओ, जितने यहाँ पे कितने बॉयज हैं, कितने हैं जो कि वैसे पैंट कमीज वाले हैं लेकिन घर में जाके धोती पहनते हैं? टू नहीं जेल, सर। टू जेल विद द विलेज क्राउड। कौन करता है ऐसा? ओकेजनली पहन सकते हैं, वैसे ऐसे नहीं बैठ के नहीं, तो बात कौन नहीं सा, करेंगे। कौन बोला जरा? नाम लाओ प्रॉपर। सौरभ। है सौरभ। सौरभ। तू बता मुझे, तू तू तेरे पास है हाँ जी धोती? सर। है धोती पहनता है तू घर जाके? हाँ सर, गांव में ऐसे कभी पूजा तू वगैरह कुछ पहनता होता है, है? ओकेजनली सर, ओकेजनली। तू पहनता है? हाँ जी सर। तो फिर तू बिल्कुल ठीक लिख रहा है स्टोरी, तेरी बात मैं एक्सेप्ट करूँ। इन नॉर्मल कोर्स ऐसा कोई करता है? मैंने नहीं देखा। सर मैंने नॉर्मल तो नहीं बता सकते, लेकिन हमारे सर, मैंने जो हाँ सर, ये मेरे फादर भी पंडित जी हैं, तो हम लोग के यहाँ सर चलता है ये सब। समझ गया, तेरे फादर पंडित जी है तो वहां चलता है, ठीक। तुम्हारा नाम भी सौरभ पांडे है, पर नॉर्मल जो बनते हैं, अगर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और वो निक्कर या जीन्स पहनता है, तो वो जब वो गांव जाता है ना, वहां भी वही पहनता है। वहां हाँ जाके सर। वो गांव के साथ ना ढलने की कोशिश नहीं करता। वो कोई पिक्चर का एक्टर नहीं है कि लगान पिक्चर बनी तो आमिर खान ने वहां पे धोती पहननी शुरू कर दी तो वो बन गया। वो कैरेक्टर से बनते नहीं जाके, ऐसा नहीं होता असली जिंदगी में। समझ रहे हो सौरभ जी? हाँ जी सर। आपकी मर्जी है, और आप कह रहे हो आप धोती पहनते हो तो आपके पॉइंट वैलिड है, फिर अब तो मान लेंगे आपको, ठीक है बढ़िया। मैंने तो पहनी नहीं धोती कभी। अच्छा, एनीवन एल्स, एनी अदर पॉइंट?
और फिर तू नंगे पैर भी घूमता है घर में जाके? नहीं सर, ओकेजनली बोला ना, तो पूजा वगैरह होती है तो सर नंगे पैर ही रहते हैं, चप्पल थोड़ी डालते हैं। ये पूजा में बैठा हुआ है यहाँ तू? चल मैं समझ गया तेरा। नहीं सर, वैसे हाँ, यू आर ट्राइंग टू डिफेंड समथिंग व्हिच यू आर फाइंडिंग डिफिकल्ट डिफेंड, पर बोलने का डिफेंड तो किया ही जा सकता है। चल ठीक है, समझ गया। एनीवन एल्स? हाँ जी। So I was saying that we can see that majority of the mistakes is in, you know, finding the age of the person as well as their dressing sense. So we are not able to tell Don't the, go by any templates, भाई साहब. Don't try to establish templates. अगर इससे आप कोई सबक सीखते हो तो वो सबक ये है कि पिक्चर को ध्यान से देखो, इंटरप्रेट करो कि क्या हो सकता है, उसके बाद ही स्टोरी लिखो. जल्दी स्टोरी लिखने की कोशिश मत करो. okay sir. टेम्पलेट मत निकालने शुरू करो कि इसके मतलब ये है कि स्टैटिस्टिक्स निकाल ली कि 90% जो है चीजें यहाँ होती हैं, इसलिए ये हमें ये करना चाहिए. No sir, no sir, I was saying that we can tell by the dressing sense of a person as well as from his face that what age of a person he is and what kind of thing he is doing right now. हाँ, तो वो सब चीजों की रेलेवेंस है ना. Yes sir, depending on the situation. करेक्ट. हाँ, जैसे वो जो थी अब पिक्चर 2 थी, उसमें आप अगर सैम हैरी वगैरह मेन कैरेक्टर का नाम लिखते तो वो सही था. अगर यहाँ पे आप कहते कि ये जैक जो था घर आया था, तो ये जैक नहीं लग रहा, ये तो राम श्याम लग रहा है ना. Yes sir. So in the second picture we can saw that these guys were wearing cowboy hat. So they must be from west country or maybe from Australia. अब देखो, अब उसमें फिर डोंट ट्राई टू से कि ऑस्ट्रेलिया वाले ये पहनते हैं वो पहनते हैं. इट इज जस्ट दैट कि दे आर नॉट लुकिंग लाइक इंडियंस, है ना. Yes sir. वेस्टर्न वर्ल्ड वाले हैं तो उस किस्म के नाम रखो उनके, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट. Yes sir. है ना. अब आप उसको ये मत करो ना कि हरी जो था वो अपनी जो था यू नो क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ में अपना जो था उसमें एंटी नक्सल ऑपरेशन में था, तब ये हुआ, तो वो लग नहीं रहा है. ठीक है ना. Yes sir. Yes sir. एंड ऑल दीज लिटिल थिंग्स मैटर, क्योंकि आपका कॉमन सेंस और आपका परसेप्शन तो पता चल रहा है ना इन चीजों से. Yes sir. पता चल रहा है ना छोटी छोटी बातों से भी. दैट इज इट. ओके, एनी अदर क्वेश्चन विद एनीबॉडी? सर गुड मॉर्निंग सर. ऐसा हो सकता है कि ये लड़का जो है ये दिल्ली विल्ली साइड में रहता होगा और गर्मी की छुट्टियों में अपने चाचा चाची या दादा दादी से मिलने गया होगा, उनके साथ बैठ के चाचा के चचेरे भाई से बात कर रहा होगा. नहीं करने को कर सकता है, तो फिर ये होना चाहिए अप्रोप्रिएट स्टोरी क्या हुई. अगर मान लीजिए आपने इनमें से इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपने कहा कि ये जो सबसे बाएं में जो लड़का बैठा है ये गया और ये अपने चाचा के पास गया और अपने चचेरे भाइयों के साथ मिलके उनसे बातचीत कर रहा है. अब इसने क्या पाया? अब पॉसिबिलिटी है कि ये गांव से कुछ चीजें सीख के गया जिसने इसकी जिंदगी पे इन्फ्लुएंस डाला, तो भी एक अप्रोप्रिएट स्टोरी हो गई. या इसने जो था उनको देखा कि कुछ चीजों में ये जो मेरे कजन्स हैं ये कमजोर चल रहे हैं, तो इसने इनको कुछ शिक्षा दी जिससे कि उनकी प्रॉब्लम हल हो पाए, इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्टेड हो जाए और ये उनका प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दे. तो दीज काइंड ऑफ स्टोरीज वुड बी ओके. तो ये इंटरप्रेट जो आपने सीन किया कि ये चाचा के पास पहुंचा हुआ बंदा है, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ये बिलीवेबल है, देखने से लग हो सकता है बिल्कुल. और फिर स्टोरी मोल्ड करनी पड़ेगी ना अकॉर्डिंगली आपको फिर. हाँ सर, हाँ सर. हाँ मतलब वो वेकेशन में गया होगा तो गांव के में क्या चल रहा है, कैसे उनका क्या हिस्ट्री रहा, कैसे खेती वेती करते हुए जान रहा होगा बस. पर एक स्टोरी फिर सेंसिबल बननी चाहिए. अगर आप खाली ये इंटरप्रेट करके लिख देते हैं कि ये चाचा से मिल के और आ गया और बड़ा खुश रहा, तो दैट इज हार्डली अ स्टोरी, दैट बिकम्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सीन. हाँ सर, थैंक यू सर. ठीक. एनीवन एल्स बेटा? नो गर्ल्स आर देयर टुडे? यस सर. यस सर. हाँ हर्षिता, हर्षिता, हाँ ये समझ में आ रही है बातें? जी सर, जी सर. अच्छा गुड.
फाइन, चलिए फिर आगे चलते हैं। Raman is a college student, छूट गया, who has volunteered to enroll for NCC as he was interested in NCC from his school days. He managed his studies and NCC activities, did every activity in balance. There was exercise which was going to happen in NCC, in which they will get to know various tactics of combat and to know about various other equipment, etc., which was going to be held in another city with other units of NCC. Just after the exercise, his final semester exams were to be held. This was Korea. He managed to get attendance and then subject notes, what he kiya kara exercise, performed best in every physical task. During the after hours in barrack, he used to study for exam. After exercise over, he went to give exam fully prepared and was also able to clear them. अब इसने कहा कि भाई ये एनसीसी वाला था, इसने ये एनसीसी की ट्रेनिंग कर ली और उसने अपने इम्तिहान भी कर लिए. एज सच द स्टोरी इज ओके. नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम ये है कि ये हथियार जो हैं एनसीसी में, कौन सा हथियार रहता है आपके पास? तो .22 राइफल देते हैं. .22 तो बेटा आप फायर करते हो, ट्रेनिंग के दौरान कौन से लेके चलते हो? .22 ट्रेनिंग करने में लेके चलते हो? नहीं सर, ट्रेनिंग में सर एसएलआर या एसएलआर होती है सर. एसएलआर एसएलआर होगी या पहले 303 होती थी. तो ये डेफिनेटली, अब ये AK-47 वाला हथियार है ना जो तस्वीर में, तो अब AK-47 तो नहीं है एनसीसी में, नहीं है ना? नहीं है सर. नहीं. तो अब यहाँ ये जो थी, अब इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बात तो है, तो हम इस स्टोरी को मान सकते हैं, चलो ठीक है. बट वंस अगेन ऑब्जर्वेशन और जनरल अवेयरनेस में थोड़ी बहुत कमियां आ रही हैं. अब ये स्टोरी अगर ये बनाई जाती कि ये जो है AK-47 लेकर जो है ये ऑपरेशंस कर रहे हैं किसी जंगल एरिया में और वहां पर इन्होंने सक्सेसफुल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कर लिया, तो ठीक है. अगर आप इसको पुलिस दिखाते हो तो नक्सल ऑपरेशन दिखा दीजिए और उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया, दैट्स इट, फाइन. एज सच ये स्टोरी भी ठीक ठाक ही है, बट ये छोटे मोटे इसमें ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं. आई बात समझ में? यस सर. मुझे लगता है व्हाट इज द इशू, people are trying to find themselves in the story. They are not broadening their point of view कि हाँ नक्सल ऑपरेशन भी हो सकता है जिसमें हम तो एक्सपीरियंस से इन्वॉल्व नहीं है, बट वी हैव रेड इन द न्यूज, वी हैव ऑब्जर्व समथिंग, वी हैव रेड समथिंग, वी कैन राइट स्टोरीज ऑन इट. तो ये जो क्लैरिटी है कि एक्सपीरियंस आना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है. यू हैव रेड अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन न्यूज़पेपर, you can use it as a template. I think this point what Yogita is making is very valid. आपके दिमाग में ये है और शायद औरों के भी हो कि हमें अपने को घुसेड़ना जरूरी है इसमें. अब अगर मान लो ये आदमी 90 साल के होते तो अपने को कहां से घुसेड़ देते? आप घुसेड़ देते? तो ये जो बात योगिता मैडम कह रही है बहुत वैलिड है. आप अपने को घुसाने की जबरदस्ती कोशिश पिक्चर्स में मत करिए प्लीज. दिस इज अ वेरी पॉपुलर टेंडेंसी. वंस अगेन blame for these are coaching academies, websites and all that, but primarily when you are writing your story you are blameworthy for what you do. ठीक, आई बात समझ में? थैंक्स अ लॉट फॉर ब्रिंगिंग आउट दिस पॉइंट योगिता. अर्चिता समझ में आ रही बात? यस सर. सर मेरा एक सवाल है. हाँ जी. जी, इसमें जो इंट्रोडक्शन है हम उसे स्किप करके मतलब सिर्फ एक लाइन में लिख सकते हैं कि वो एनसीसी में था, उसके बाद जो भी हुआ तो स्टोरी. अर्चिता लंबे इंट्रोडक्शन देने की जरूरत ही नहीं है. आपने हमारी सैंपल स्टोरीज पढ़ी है ना? हाँ सर. उसमें है कोई लंबे इंट्रोडक्शन? नहीं सर, मुझे पता है. लंबी तो बात ही करनी अकलमंदी नहीं होती. काम छोटा ही रखना ठीक है. ठीक. Blank story. Shiva had just completed his BTech in mechanical engineering and got to know about various job entries in which he was interested.
Main was the armed forces through technical entry, through UPSC, etc. So he applied in those direct entries, started preparing for the UPSC entrance exams. Simultaneously, not wasting any time, he took a job at GED in a manufacturing company. Through campus placement, he managed his preparation time and job hours, kept his physique की spelling एकदम ही गलत है. So at peak by doing running and going to the gym, he gave his best at the job, managed daily needs through his income he was getting. Eventually, he cleared the exams and interview, got merited through consistent effort. ये स्टोरी बिल्कुल ठीक है. वरुण देव ने अपनी स्टोरी ब्रीफ लिख दी है सक्सेस की स्टोरी, पर ये सक्सेस गॉड विलिंग शुड कम टू हिम इफ ही इंप्रूव्स हिज थोड़ी बहुत इंग्लिश एंड जीके, तो इसके बाद बन जाएगी और ये स्टोरी इसकी सच्ची स्टोरी हो जाएगी रियल लाइफ की. सो आई गॉट नो ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टोरी.